Welcome to T. Naveen Paul Ministries. टी नवीन पॉल मिनिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। Friends, once again we are here to meditate upon the Word of God along with you. मित्रों, एक बार फिर से हम यहाँ पर हैं कि परमेश्वर के वचन को आपके साथ सीखें। And the episode that we have today is the 88th episode. और आज के लिए जो हमारा एपिसोड है वो है 88 एपिसोड, And this is on the book of Revelation. और ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से है। The main verse for today's episode is Revelation chapter 22 and verse 11. और आज के लिए जो हमारा वचन है वो है प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और इसका 11 वचन। Friends, one of the concerns of the world is that everything appears to be the same in status quo. और दुनिया का एक जो दृष्टिकोण है वो ऐसा है कि सब चीज़ें उन्हें समान दिखती हैं। And because the flow of the world in a certain direction appears to be so natural, so the people feel that there is not going to be any change. और परमेश्वर के वचन का बहाव भी एक रीति से एक दिशा में होता है, तो लोगों को लगता है कि सब कुछ समान रहेगा, कुछ बदलाव नहीं। And people feel that there is not going to be any end to it. और लोग सोचते हैं कि इस बात का कोई अंत नहीं होगा। One who knows Jesus and one who reads the Bible knows for sure that there is going to be an end. और जो व्यक्ति यीशु को जानता है और जो बाइबल पढ़ता है वो जानता है कि इस बात का अंत होगा। And we have a living hope in Jesus Christ that He is coming again to take us. और हमें यीशु में जीवित आशा है कि वो हमें वापस लेने आ रहा है। And we are going to be in heavenlies where there will be no sin. और हम जो है स्वर्गीय में रहेंगे जहाँ पे कोई पाप नहीं होगा। But in this world there is a lot of sin and troubles. लेकिन इस दुनिया में बहुत से पाप हैं, तकलीफ है। But Jesus says, take courage because I have overcome the world. और परमेश्वर का वचन कहता है कि ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया। So in the victory of Jesus is a secret hidden. यीशु की विजय में एक भेद छुपा है। And that secret is given to every believer. और वो भेद हर एक विश्वासी को दे दिया गया है। If the world is saying nothing has happened and everything is going as it was in the beginning, और यदि दुनिया कहती है कि कुछ भी बदलाव नहीं होगा और सब कुछ शुरुआत से एक जैसा चलेगा। and Paul says in his epistles that this would be a statement of many a people. और पौलुस ऐसा अपनी पत्री में कहता है कि ये बहुत से लोगों का वाक्य होगा। The Holy Spirit says that Jesus is coming again. और पवित्र आत्मा कहता है कि यीशु जल्द आएगा। Satan and evil spirits say there is nobody who is going to come. शैतान और दुष्ट आत्माएं कहती हैं कि कोई आने नहीं वाला, Because they have a wrong narrative to put upon this earth. क्योंकि उनके पास गलत दृष्टिकोण है पृथ्वी पर डालने के लिए। But now in the book of Revelation through John, God is speaking to the people. लेकिन अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है। Let everything go as it is. और हर एक बात जैसी है वैसी चले। When people say that they have a choice or independence to choose, और जब लोग कहते हैं कि उनके पास चुनाव है और उनके पास स्वतंत्रता है चुनाव करने के they लिए, have a free will and they can pick up and it's their right to pick up whatever they want. और उनकी इच्छा जो है वो उनके सामने स्वतंत्रता दी गई है और वो कुछ भी अपने लिए चुनाव कर सकते And हैं। as days are passing by, human dignity and choice to choose whatever you want is becoming more important. और जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे मनुष्य का जो आदर है और चुनाव करने की क्षमता है वो बढ़ती जा रही है। And we can very well see in this world that people are tilted towards doing bad as their choice. और हम इस दुनिया में देखते हैं कि लोग बुराई की तरफ जो है मौजूद रहते हैं और ये उनका चुनाव होता है कि उन्हें बुरा करना है। And in John chapter 1 it is said that light came into this world but people preferred darkness. और परमेश्वर के वचन में यूहन्ना की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि जो उजाला दुनिया में आया और लोगों ने अंधकार में रहना पसंद किया, Because their works were evil. क्योंकि उनके काम बुरे थे। So all the goodness of God is available upon this earth. तो परमेश्वर की जितनी भलाई है वो पृथ्वी पर मौजूद है। Yet the people who are given to evil will always try to prevail in evil. लेकिन जो लोग बुराई में दे दिए गए हैं वो हमेशा बुराई को ही मानेंगे। Now this is something that Jesus also taught his disciples. और ये कुछ बात थी जो यीशु ने भी अपने चेलों को सिखाया था। He gave a parable to them. उसने उन्हें दृष्टांत बताया That there was a farmer who had many servants and who had sown good seed in his field. कि एक किसान था और उसने बहुत अच्छी जो बीज है वो अपने खेत में बोई। But suddenly some enemy came in and sowed some
bad seeds, bitter seeds in the same field. और कोई दुष्ट आया और उसने कड़वे बीज या खराब बीज उस खेत में बो दिए। So the servants got worried. और जो काम करने वाले थे वो चिंतित हो गए। As the seeds sprouted, they could make out that there is something wrong. और बीज जैसे अंकुरित हुए वो इस बात का पता लगा सकते थे कि कुछ तो गलत बात है। So they went to the master तो वो स्वामी के पास गए and said that there is something deceitful happening in our field. और वो कहने लगे कि हमारे खेत में कुछ तो धोखा देने वाली बात हो रही है। Though when the bitter seeds are sown, shall we pluck them away? तो जब ये कड़वे बीज बोए जाते हैं तो क्या हम इन्हें हटा दें? But the master said no. लेकिन स्वामी ने कहा नहीं, Let them grow together. उन्हें साथ में बढ़ने दो There is a time of harvest. और कटनी का एक समय होगा And when I'll discriminate between the two, और तब मैं दोनों में अंतर करूंगा and I'll keep the good ones with me और मैं अच्छे बीज अपने पास रखूंगा and burn the bad ones. और खराब बीज को जला दूंगा Till then, let them grow together. और तब तक उन्हें साथ में बढ़ने दो। So, in the same field, in the same irrigation, the bad seed is as happy as the good seed. तो उसी खेत में उसी स्थान पे बुरे बीज ऐसे खुश हैं जैसे अच्छे बीज। So, there is no difference between the two. तो दोनों के बीच कोई अंतर नहीं And है। the poor bad seed doesn't know that it has a tragic end. और बुरे जो बीज हैं उन्हें ये नहीं पता कि उनका एक अंत होगा। And Jesus said, let them go together. और यीशु कहता है कि उन दोनों को साथ में बढ़ने दो Because I value righteousness. क्योंकि मैं धार्मिकता के बारे में ध्यान देता हूँ। Perchance, if you pluck even a single good seed, thinking that it is bad, that would be a loss. हो सकता है कि यदि तुम बुरे बीज के चक्कर में कोई एक अच्छे बीज को खो दो तो क्या होगा? That's a loss for me. और वो मेरे लिए एक हानि के समान And है I'm not going to bear that. और मैं उस हानि को जो है बेयर नहीं कर सकता। Let everybody go together. हर एक जन को साथ में बढ़ने दो। I know how to judge the people. मैं जानता हूँ कि मैं लोगों का न्याय कैसे I करूँ। know how to reward the people according to their works. मैं जानता हूँ कि मैं लोगों के काम के अनुसार उन्हें कैसे पुरस्कृत करूँ। It is in my hands. ये मेरे हाथ में है। Jesus says God doesn't judge anybody. यीशु कहता है कि परमेश्वर किसी का न्याय नहीं करता। Authority to judge is given in the hands of Jesus. न्याय का अधिकार यीशु के हाथ में है। And the book of Revelation says that when Jesus comes, people will not be able to even put their eyes upon him. और पुस्तक ऐसी कहती है कि जब यीशु आएगा तो लोग अपनी आंखें उठा के भी उसे नहीं देख पाएंगे। So that kind of a return is going to come to the evil people. और उस तरह का पलटा जो है बुरे लोगों के पास आने वाला है। So when God knows that he is going to judge the evil, तो जब परमेश्वर जानता है कि वो बुरे लोगों का न्याय करेगा he says the system that I want to have in this world is my system. और वो चाहता है कि जो कार्य जो सिस्टम इस दुनिया में हो वो उसका परमेश्वर का सिस्टम। That's why the word of God is putting the rail and the train has to run on that rail. इसलिए परमेश्वर का वचन जो है वो एक रास्ता बनाता है और वो गाड़ी को उसके ऊपर चलना है। There is no other way for this world but the only way that God has made. और इस दुनिया के पास कोई अन्य रास्ता नहीं है लेकिन सिर्फ वही रास्ता जो परमेश्वर ने बनाया। So writing the book of Revelation, John says, now let me address this problem. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखते हुए यूहन्ना कहता है कि आइए मैं इस जो समस्या इसका समाधान It's करूं। an age-old problem where people say, why the evil people are flourishing? और ये बहुत ही पुरानी समस्या जब लोग पूछते हैं कि बुरे लोग क्यों इतने बढ़ रहे हैं। The psalmist also says, I was much disturbed till I saw the end of the evil one. और भजनकार भी कहता है कि मैं अपने मन में बहुत ही दुखित था जब तक मैंने बुराई का अंत नहीं देखा। So all is well that ends well and all is not well that doesn't end well. और सब कुछ अच्छा है जो अच्छे से खत्म होता है और फिर जो चीज अच्छी नहीं होती है जो अच्छे से खत्म नहीं है। So in Jesus everything ends well. यीशु में सब कुछ अच्छे से अंत होता है And without Jesus nothing ends well. और यीशु के बिना कुछ भी अच्छे से अंत नहीं। When he says that I am the Alpha and Omega, जब वो कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ so he decides the end of everything. तो वो हर एक बात का अंत भी तय कर देता है। That's why you don't have to worry. इसलिए आपको चिंतित नहीं होना है And you should not rub shoulders with the people or you compare yourself with other people. और इसलिए आपको अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना है Because you know that your God is coming who is going to reward you. क्योंकि आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर आएगा जो आपको पुरस्कृत करेगा And you will celebrate the judgment of Christ. और आप परमेश्वर के न्याय को मनाओगे Because there will be nothing wrong possible in your life. क्योंकि आपके जीवन में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। That's why he's saying इसलिए वो ऐसा कहता है in verse 11,
11वें वचन में, that is chapter 22 and verse 11. जो है 22 अध्याय उसका 11वां He वचन। who is unjust, let him be unjust. जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे। Now, the unjust is damaging the world. और जो अन्याय है वो दुनिया को खत्म कर रहा है। The unjust people are spoiling the world. और जो अन्याय करने वाले लोग हैं वो दुनिया को बिगाड़ रहे हैं। The unjust are spoiling the creation of God. और जो अन्याय करते हैं वो परमेश्वर की रचना को भी बिगाड़ रहे हैं। And everything that God has made beautiful is spoiled by the unjust people. और हर एक चीज जो परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत बनाई है वो अन्याय करने वालों ने See, बिगाड़ God created everything and said it's beautiful. देखिए परमेश्वर ने सब कुछ का सृजन किया और कहा कि ये बहुत सुंदर है। But seeing the nature and downfall of man, he said, I'll change everything. लेकिन रचना को देखते हुए और मनुष्य जैसा गिरा उसको देखते हुए उसने कहा कि मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। I'll change the sun, the moon, the earth, the sky. और मैं सूरज, चांद और जो सितारे उन सबको और आकाश को खत्म कर दूंगा। So I have a logical end to everything. तो मेरे पास जो है एक हर एक चीज का अंत होगा। And that is decided within me. और ये मैंने अपने अंदर तय कर लिया। So one who is giving revelation to John, तो जो यूहन्ना को प्रकाशन दे रहा है he is also revealing this to the world that the judgment is nigh. वो दुनिया को भी ये बात बता रहा है कि न्याय जो है वो होने वाला है। And God is going to judge everybody. और परमेश्वर हर एक का न्याय करेगा। Day by day, people are less careful about judgment. दिन पर दिन लोग जो है न्याय की ओर ध्यान ही नहीं देते। They just want to enjoy the life in the way they want to. और वो सिर्फ जीवन के लिए आनंद मनाना चाहते हैं जैसा जीवन होने वाला। But they do not know that there is going to be an end to everything. वो नहीं जानते कि हर एक बात का अंत है। And one who is doing bad will end into a very tragic end. और जो बुरा कर रहा है उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा। But the good will always receive the reward of the Lord. लेकिन जो अच्छे हैं वो परमेश्वर से पुरस्कार So पाएंगे। those who choose to be bad तो जो बुरे बने रहेंगे and those who choose to be sinful upon this earth, और जो पाप में जीवन बिताना चाहेंगे let them do whatever they want to. तो जैसा वो करना चाहते हैं वैसा वो करें, Because an end is coming. क्योंकि अंत आने वाला है And judgment of Christ is coming upon everybody. और यीशु का न्याय हर एक के ऊपर आएगा। That's why he says, let the evil be evil. इसलिए वो कहता है कि बुरे को बुरे रहने दो Who is unjust, let him be unjust. और जो अन्याय करता है वो अन्याय करता रहे। And who is filthy, let him be filthy जो still. मलिन बना है वो मलिन बना ही रहे। Unjust doesn't give judgment to the people. अन्याय जो करता है वो लोगों को सही न्याय नहीं देता। So people lose their part because of the greed of many तो people. लोग अपने अधिकार को खो देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग लालच करते हैं। And those who are filthy are in dirty works and also try to maintain in dirty works. जो मलिन कार्य करते हैं वो मलिनता में रहते हैं और चाहते हैं कि उसी में बने रहें। And the Bible says that when you see the filthy people, you get yourself spoiled and you also become filthy. और बाइबल ऐसा कहती है जब तुम मलिन लोगों को देखते हो तो तुम खुद भी खराब हो जाते हो और तुम भी वैसे ही बने रहते So there are unjust and filthy people in this world. हो। तो इस दुनिया में अन्याय करने वाले और मलिन कार्य करने वाले लोग हैं। There is no shortage of such people. इन लोगों की कोई कमी नहीं है। But as a Christian, what should I do? लेकिन एक मसीह होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए? Now here is God instructing you. इधर परमेश्वर हमें सिखा रहा है। Let everybody do whatever he wants to. हर एक व्यक्ति जो करना चाहता है वो Isaiah 53 says we all have led astray and we all took our own ways. और यशायाह 53 में ऐसा लगा है कि हम सब अपने राह से भटक गए और हमने अपनी अपनी ही राह ले ली। So everybody has his own philosophy of life. तो हर एक के पास जीवन का एक अलग ही दृष्टिकोण And है। may I tell you that the people of this world are bringing their thoughts together to create something anew. और मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया के लोग अपने अपने विचारों को समेट कर कुछ ऐसा बना देते हैं जो कुछ नया सा। And there is the new age religion coming in this world. और नए युग का धर्म इस दुनिया में आने लगा है। And what the Bible says, they also say that. और जो वचन कहता है वो भी वैसा कहते हैं। Let the unjust be unjust. जो अन्याय करता है वो अन्याय करे। Let the filthy be filthy and happy. जो मलिन करता है वो मलिन But they करे। don't talk about the conclusion लेकिन वो लोग सारांश की बात नहीं करते that there is going to be a judgment. कि एक न्याय होने वाला है And the judgment will decide heaven and hell in the lives of people. और वो जो न्याय है वो लोगों के जीवन के स्वर्ग और नरक को So बताए। we have to be careful. The attitude that you take decides heaven or hell. तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो आचरण हम लेते हैं उससे हमारे स्वर्ग और नरक का पता You see, चलता the है। decisions that we take in the world take us to certain extent. देखिए जब जो दुनिया में निर्णय हम लेते हैं वो हमें कुछ दूरी पर लेकर जाते हैं And the things that we choose, we get the result.
और जो हम चुनाव करते हैं हमें उसका परिणाम मिलता है। But this mistake that humanity does upon this earth means hell or heaven. लेकिन ये जो गलती इंसानियत में लोग करते हैं इसका अर्थ है या तो नरक या स्वर्ग। So there are so many people who are blinded in their spiritual eyes and are going towards all filth and punishment. और बहुत से लोग हैं जो आत्मिक रूप से अंधे हैं और इसलिए वो मलिनता की ओर जा रहे हैं। And they are giving a wrong narration into this world. Nothing is going to happen. Let us make this world a better place to live in. और वो लोग दुनिया को एक गलत दृष्टिकोण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ भी बुराई नहीं होगी, आइए हम इस दुनिया को सुंदर बनाएं। But this kind of a prophecy was given in the Old Testament also. लेकिन इस तरह की भविष्यवाणी तो पुराने नियम में भी दे दी गई थी। And that's why God says His command to the world is that you have to be careful about the word, otherwise you will take a wrong path. और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी घोषणा ऐसी कहती है कि तुम्हें सही रास्ता लेना है वरना तुम गलत चले जाओ। Turn with me to Daniel chapter 12 and verse 10. और मेरे साथ निकालिए दानियल की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और 10वां वचन। And let's read what the Bible says there. और वहाँ पर ऐसा लिखा है, बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। Now here, this is the right side of the word of God. ये परमेश्वर के वचन का सही स्थान है, सही Now जगह। Daniel is not saying let the evil be evil, दानियल ये नहीं कहता है कि बुरे बुरे ही बने रहे। but see the way he is speaking the same thing. देखिए वो कैसे इस बात को कर रहे हैं। He says there are so many people who will sanctify themselves. और बहुत से लोग हैं जो अपने आप को शुद्ध करेंगे। Please read it. बहुत से लोग हैं अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे। There are many people. बहुत से लोग हैं। This is an encouragement to the church. कलीसिया के लिए प्रोत्साहन है। Don't lose your heart. अपने हृदय को ना खोइए। God says it's not just a few, but many people who will go towards righteousness in the परमेश्वर last का days. वचन कहता है कि कुछ कम लोग नहीं, बहुत सारे लोग धार्मिकता की ओर जाएंगे। He's talking in future tense. वो भविष्य के बारे में बात कर रहा है। And Daniel is a person who talks even in the end of the world. और दानियल तो एक ऐसा भविष्यवक्ता है जो अंत के दिनों की बातें करता है। And this is what he's speaking about. और वो हमें यहाँ पर बताया। In the last days, there will be a flow of righteousness among humanity. और अंत के दिनों में एक ऐसी धार्मिकता की धारा बहेगी That many people will make themselves clean and neat. और बहुत से लोग अपने आप को उजले और निर्मल बना लेंगे। But how about the evil ones? लेकिन बुराई का क्या होगा? See what the verse says. देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और स्वच्छ हो जाएंगे परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। But the evil will continue with their evil. लेकिन दुष्ट दुष्टता ही करते रहेंगे। So originally everybody is evil. तो पहले तो सब बुरे थे। And we are born in sin, everybody. और हम में से हर एक जन पाप से पैदा हुआ है। But the moment we are born again in Christ, लेकिन जिस क्षण हम यीशु में नए बन जाते हैं, we take a turn and we go into holiness. हम एक बदलाव को ले लेते हैं और हम पवित्रता में चले जाते हैं। That's why a testimony in Jesus Christ is necessary for everybody. इसलिए यीशु में गवाही होना हम सभी के लिए बहुत So once you are born again, you are taking a route to righteousness. तो एक बार जब आप नए जन्मे हो जाते हैं तो आप धार्मिकता की ओर एक मोड़ ले लेते हैं। But if you are evil, then you are continuing the evil that is originally in you. लेकिन यदि आप बुराई को करते हैं तो आप उस बुराई को करते रहेंगे जो आपके अंदर पहले से था। That's why Jesus said you need to be born again. इसलिए यीशु कहता है कि तुम्हें नए जन्मा होना जरूरी है। Because we are a new creation and old things go away. क्योंकि तुम एक नई रचना हो और पुरानी बातें सब बीत गई। A new righteousness rises in you. एक नई धार्मिकता आपके अंदर पैदा होती है। But if you are keeping in the old trend, लेकिन यदि तुम पुराने अनुसार जीते रहोगे, you will not be able to see any change. तुमको नए बदलाव को नहीं देख पाओगे। As you are, you will remain till the end. जैसे तुम हो वैसे तुम अंत तक बने रहो। And then he says, फिर वो ऐसा कहता है, none of the evil will understand this. कुछ भी बुरे लोग जो है वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। See in the verse he says, देखिए वचन में वो ऐसा कहता है, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझे। no one will be able to understand. कोई इन बातों को समझ भी नहीं। The evil says, I understand everything. दुष्ट कहता है कि वो हर एक बात को समझता है, And the Bible says he understands लेकिन nothing. बाइबल कहती है कि वो कुछ भी नहीं If समझता। you have not understood your pathetic condition, then you have understood nothing.
लेकिन यदि आप अपनी जो दर्दनाक परिस्थिति उसको नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब आप कुछ भी नहीं समझे। But you say that I understand everything. लेकिन तुम ऐसा कहते हो कि तुम सब कुछ समझते हो। But the wise will become wiser. लेकिन जो बुद्धिमान है वो और बुद्धिमान होगा And they will understand everything in the Word of God. और वो सब कुछ परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। See, this is what the Bible teaches us. देखिए, ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है That we need to be very, very careful. कि हमें बहुत ही ध्यान देना है And we need to take the change where the world doesn't see any change. और हमें उस तरह मोड़ लेना है जिस समय दुनिया कोई मोड़ नहीं लेती। For God so loved the world that He gave His only begotten Son, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे so दिया that whosoever believeth on Him gets a dynamic change in his life. ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसके जीवन में एक अद्भुत बदलाव हो। It's a difference of heaven and hell. इस स्वर्ग और नरक के बीच का अंतर जैसा है। And after eternity, we will understand what it means to be a difference between heaven and hell. और अनंत काल के बाद हम ये समझेंगे कि स्वर्ग और नरक के बीच का अंतर क्या है। Please turn over with me to Hosea and chapter 14 and verse 9. और मेरे साथ अब होशे नबी की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और 9वां वचन। Again, a similar statement is given over. और फिर वैसे ही समान वाक्य यहाँ पर लिखा है। Let's read it in Hindi. जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा। One who is wise. You see, we have talked about foolishness and wisdom in this verse. देखिए, हमने मूर्खता और बुद्धिमानी के बारे में इस वचन में पढ़ा। A foolish man will never understand the word of God. मूर्ख कभी परमेश्वर के वचन को नहीं But समझे। the fear of God is the beginning of wisdom. लेकिन परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। Anybody who has God in his life is wise. जो परमेश्वर को अपने जीवन में मानता है वो बुद्धिमान है। Otherwise, godless thinking, philosophy, innovation, anything is foolishness. क्योंकि परमेश्वर के रहित कोई भी विचार, कोई भी योजना, कोई भी बातें जो है वो सब मूर्खता है। Because in Romans chapter 1, he says that they proved themselves foolish, posing as if they were wise. और रोमियो के पहले अध्याय में ऐसा लिखा है कि वो अपने आप वो मूर्ख है और अपने आप को ऐसे दिखाते हैं जैसे वो बहुत ज्ञानवान है। This is the story of the world. ये दुनिया की कहानी है। So in Hosea chapter 14, he says, और होशे नबी की पुस्तक उसके 14वें अध्याय में ऐसा लिखा है। please read 14:9. 14वां अध्याय 9वां वचन। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा। Now, these are the things which are not understandable by anybody. ये सारी ऐसी बातें हैं जो हर एक व्यक्ति नहीं समझेगा। Who is a wise man? बुद्धिमान कौन है? A godly person is a wise person. जो परमेश्वर से भरा है वो बुद्धिमान है। And who knows the plan of God, जो परमेश्वर की योजनाओं को जानता who है, knows the secret of जो God, परमेश्वर के भेदों को जानता is है, a wise man. वो बुद्धिमान है। A wise man is a man who goes to heaven. और बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो स्वर्ग जाएगा। And a foolish man is a man who goes to hell. और मूर्ख व्यक्ति वो है जो नरक जाएगा। If you are sure you are going to heaven, यदि आप इस बात को जानते हैं कि आप स्वर्ग जाएंगे then you are wise. तो आप बुद्धिमान हैं। And if you don't think that you are going to anywhere, then you are fool. और यदि आप सोचेंगे कि आप कहीं भी नहीं जा रहे तो आप जो है मूर्ख हैं। Jesus said, if you gain the whole world and you lose your soul, then you will gain nothing. यीशु कहता है कि यदि तुमने सारे संसार को जीत लिया और अपनी आत्मा को गवा दिया तो कैसा लाभ होगा। So there are so many intelligent fools in this world. तो इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बुद्धिमान तो है लेकिन मूर्ख हैं। And their wisdom is foolishness और उनका जो ज्ञान है वो मूर्खता है in the sight of God. परमेश्वर के So दृष्टिकोण। Hosea 49 says, तो होशे नबी की पुस्तक उसका 14 अध्याय 9वें वचन में ऐसा लिखा है। please read the whole verse. जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उन पे चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। So this is a straight path that God has kept. और परमेश्वर का मार्ग बहुत ही सीधा है। You don't have to turn around here and there. आपको इधर उधर मुड़ना नहीं है। There is no zigzag in the way of the Lord. परमेश्वर के मार्ग में कुछ इधर उधर नहीं है, It's all straight. सीधा है। And you walk without any trouble. और आप कोई भी परेशानी के बिना सीधे चलते हैं। But how would the wicked? लेकिन दुष्ट कैसे They will चलेगा? not get the same path. उन्हें वही रास्ता नहीं मिलेगा They will walk on a path where they will stumble at every step. और उन्हें ऐसा मार्ग मिलेगा जिसमें वो हर मोड़ पर गिरेंगे। And that is what is happening in this world. और दुनिया में भी ऐसे ही हो रहा है। And gradually people are going from bad to worse because they are stumbling in every step. और लोग जो है बुराई से और खराब स्थिति में जा रहे हैं क्योंकि वो हर एक कदम पर गिर रहे हैं। In the Bible it is written in the book of Judges, when the judges died, the people became more bad. और न्यायों की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि जब न्यायी मर गए तो जो लोग थे वो और ज्यादा बुरे बन गए। You see, you never maintain the status quo.
देखिए आप जो है चीजों को समांतर नहीं रख सकते। The evil of this world also has its own intention. और दुनिया के जो बुरे लोग हैं उनके भी कुछ विचारधारा हैं। They go from bad to worse. वो बुरे से और बुरे की ओर जाते And the हैं wise go from better to better. और जो बुद्धिमान है वो बुद्धिमान से और बुद्धिमानी की ओर जाते हैं। So God says, don't worry when you look at this world. परमेश्वर कहता है कि जब तुम इस दुनिया को देखो तो चिंता मत करो। One who is unjust, let him be unjust. जो अन्याय करता है वो अन्याय करते So रहे। God sanctions him. तो परमेश्वर उसको अधिकार देता है। Be unjust and enjoy your unjustness. अन्याय करो और अपनी अन्यायता में ही पड़े रहो। See what is happening in this world today? देखिए इस दुनिया में आज क्या हो रहा The whole world is becoming a jungle, है और पूरी दुनिया एक जंगल समान है and there appears to be no order anywhere. और कहीं पर भी कुछ भी ऑर्डर नहीं है। And we are so sorry for the things that are happening around the world. और हम दुनिया के लिए बड़े ही दुखित हो जाते हैं कि जो जो बातें दुनिया में होती हैं। Nobody imagined the things that are happening today. कोई भी सोच नहीं सकता उन बातों के बारे में जो इस दुनिया में हो रही है, Because the unjust are continuing in their unjustness. क्योंकि जो अन्याय करता है वो अन्याय करता ही रहता है And the filthy is continuing in his filth. और जो मलिन है वो मलिनता में बना रहता है। See the filthiness that is growing in this world today. देखिए कैसी मलिनता है जो दुनिया में The बढ़ती things है। that are happening today in the name of filth never happened almost 100 years back. और आज के दिन में जो मलिनता के नाम में चीजें हो रही वो 100 साल पहले भी कभी नहीं। People were all in good sense. लोग हमेशा अच्छे से चलते थे, But today, filth is increasing filth. लेकिन आज दिन पर मलिनता बढ़ती ही जा रही But then he says, let the righteous be righteous है। लेकिन फिर वो कहता है कि जो धार्मिक है वो जो धर्मी है वो and धर्मी the बना holy be holy. रहे और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। Now, one who is righteous, who is walking in the right path, और जो धार्मिकता का पालन करता है और जो सही रास्ते पर चलता है, the right living is in Jesus Christ. सही चलन जो है वो यीशु है। In book of Jeremiah, it is said the Messiah who is coming will be called your righteousness. और यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है कि जो मसीहा आएगा वो तुम्हारी धार्मिकता कहलाएगा। So Jesus is our righteousness. यीशु हमारी धार्मिकता है। He is a role model for us. वो हमारे लिए एक रोल मॉडल समान है। And he invites us that in and through Holy Spirit we become like Jesus. और वो हमें निमंत्रण देता है कि हम उसके द्वारा और पवित्र आत्मा में यीशु के समान So बन we जाएं, get into right living. ताकि हम सही रीति से जीवन को Holy and acceptable to God. पवित्र और परमेश्वर को प्रसन्न करने योग्य। We are not living a life which is acceptable in the society, हम वैसा जीवन नहीं जी रहे जो संसार के अनुसार अच्छा हो, but it is acceptable to God. लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न योग्य हो। And which is acceptable to God in heaven और जो परमेश्वर को स्वर्ग में प्रसन्न योग्य हो is glorious upon us. और यहाँ पर वो महिमान्वित बात है। So we are living a glorious life. तो हम एक महिमान्वित जीवन को जी रहे हैं। Let's grow into righteousness. आइए हम धार्मिकता में बढ़ते जाएं And let's grow into holiness. और हम पवित्रता में बढ़ते जाएं, Because there is a parameter of holiness. क्योंकि पवित्रता को भी मापने का एक मापदंड है। Unless you have the minimum holiness, you cannot see God. और जब तक आपके पास जो है बहुत ही कम पवित्रता नहीं है तो आप परमेश्वर को देख नहीं सकते। In the book of Hebrews, it is written, pursue holiness without which nobody will be able to see God. इब्रानियों की पुस्तक में ऐसे लिखा है कि उस पवित्रता का खोजी बने रहो जिसके बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। How do you look at this world? आप इस दुनिया को कैसे देखते हो? Be engaged with your Christ अपने मसीह के साथ जुड़े रहो and be in a life of righteousness and holiness. और धार्मिकता और पवित्रता के जीवन में बने रहो। Your Jesus has told you आपके यीशु ने आपसे कहा there are so many things that will be happening. बहुत सारी बातें हैं जो पृथ्वी पर होंगी And the contamination which is in the world should not come to you. और दुनिया में जो खराब बातें हैं वो आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। Let's be in the Lord. आइए हम प्रभु में हो जाएं Look to the Lord. और प्रभु की ओर देखिए Let everything continue. और सब कुछ चलता रहे। God is there to judge. परमेश्वर है हमारा न्याय करने। So let's prepare to meet Jesus. आइए हम तैयारी कर ले Do not face this world. इस दुनिया को ना देखें, Do not pay back to the evil people. बुराई का पलटा ना ले, But look to Jesus. यीशु की ओर देखें And a sign that you look to Jesus और ध्यान रखिए कि आप यीशु की ओर ही देखते रहें। is a testimony to the world ये दुनिया के लिए गवाही है that wise people कि जो बुद्धिमान लोग हैं are godly people. वो प्रभु के लोग हैं। May the Lord bless this. परमेश्वर इस मनन को आशीष दे। See you in the next episode. हम अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे।